आम आदमी पार्टी तो कराया नहीं। दिल्ली की जनता 10 साल से त्रस्त, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री जो थे ये अपने झूठे प्रचार और अपने घोटालोबाजियों में व्यस्त। पलड़ा ज्यादा भारी है। Only BJP. ओनली बीजेपी, व्हाई डू यू थिंक सो? Modi is Modi. जब तक दिल्ली में केजरीवाल रहेगा, दिल्ली का बंटाधार रहेगा। Hello and welcome to Delhi Dangal Ground Zero Survey. I am Tejri Purandare and today we are heading towards Patel Nagar constituency in the West Delhi. This particular constituency in West Delhi is witnessing a very fascinating and unique electoral battle because here the fight is between ex-BJP leader versus ex-AAP leader who have now switched their sides. Hello, I'm Mohit Bhatt and welcome to our show. Now, Tejri, let me explain the political scenario and the current situation on the ground in Patel Nagar for our viewers. Rajkumar Anand, who is contesting from the BJP's ticket this time around, has been an Aam Aadmi Party leader and a former minister in the Delhi cabinet. He switched sides and he is contesting against Parvesh Ratan, who was earlier with the BJP and now he is contesting from the Aam Aadmi Party. Absolutely, Mohit. Rajkumar Anand was a Dalit leader, cabinet minister and was also a Dalit face of Aam Aadmi Party. But he was upset by the working style of Aam Aadmi Party for the reserved classes. That is why he switched his side and joined BJP. Whereas Parvesh Ratan was associated with BJP for more than 2 decades and also was the face of BJP Yuva Morcha. Well, as of now, it seems that Patel Nagar is a stronghold of the Aam Aadmi Party, but BJP has put their faith on Rajkumar Anand's face, and perhaps that is why he is being given ticket to contest elections this time around from Patel Nagar. So let us go and have a check that what the voters have to think, because faces have changed their parties, the parties have changed their candidates, but will the voters change their mind? Let's go and check on Delhi Dangal Ground Zero Survey. Times now is on the ground in Patel Nagar and gauges the mood of the voters. Aam Aadmi Party candidate Parvesh Ratan is confident of the party's victory, but do his claims hold water? Well, the team of Delhi Dangal Ground Zero Survey has reached Patel Nagar, and Patel Nagar is witnessing a very interesting fight, and as of now I am being joined by the Patel Nagar candidate from Aam Aadmi Party, who is Parvesh Ratan. प्रवेश जी, ये बताइए सबसे पहले कि आप पहले बीजेपी में थे, आम आदमी पार्टी में आए, 20 साल आपने बीजेपी में काम किया, अब आप एक्स आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं जो बीजेपी में चले गए हैं। बिल्कुल, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो मुझे इज्जत सम्मान दिया है, मैं उसके लिए ऋणी रहूंगा हमेशा। और एज ए यूथ, पटेल नगर का पूरा यूथ मेरे साथ है। पूरे विधानसभा के अंदर 4 वार्ड आते हैं और चारों वार्ड की जितनी भी जनता है वो यूथ हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं, मेरी बहनें, सब मेरे साथ सपोर्ट में खड़े हैं, क्योंकि जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं राजकुमार आनंद, उनको मौका मिल चुका है और उनको 5 साल का मौका मिला है। 5 साल के अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको उदाहरण बनाकर पेश कर सके, और वो मिनिस्टर भी थे। लेकिन वो थे आम आदमी पार्टी में, अब आम आदमी पार्टी में आप चले गए हैं, तो आपको लगता है कि मान लीजिए जनता को यदि आम आदमी पार्टी से नाराजगी है यहाँ पर पटेल नगर में, तो उस नाराजगी का असर आप पे पड़ सकता है? नाराजगी आम आदमी पार्टी से कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी, नाराजगी थी चेहरे से। और मैं हमेशा एक ही चीज कह रहा हूं, अब ये चेहरे का चुनाव होगा, पैसे का चुनाव नहीं। क्योंकि राजकुमार आनंद जी जो जागते हैं वो 5 साल में आखिरी के 1 महीने में जागते हैं। उससे पीछे आप देखिएगा कोई भी किसी प्रकार का कोई पटेल नगर विधानसभा में क्लस्टर में जाइए, कोई काम ही नहीं करा उन्होंने। तो आपका कहना है कि चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन वो क्या वजह रही कि आपको बीजेपी, जो आप बीजेपी का चेहरा थे, अब आपको आम आदमी पार्टी का चेहरा बनना पड़ा? वो तो देखिएगा, वो बीजेपी को पूछना पड़ेगा, बीजेपी ने क्यों ऐसी स्थिति लेकर आई, और वहां पे जो सम्मान नहीं मिलता। यूथ की बात करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि युवाओं को, क्योंकि 5 साल पहले अगर चुनाव लड़ाया तो उसके बाद उन्होंने वो डंप करने का काम किया, और 5 साल के अंदर मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं दी गई। युवाओं का मतलब होता है कि आप उनको आगे बढ़ाएं, और वहां पे आगे नहीं बढ़ाया गया, बल्कि डंप मीटर पर, यहाँ कुछ ही मीटर्स पर आगे जाएंगे, कुछ कदम चलकर तो बीजेपी का भी ऑफिस है, राजकुमार आनंद का चेहरा वहां पर लगा हुआ है। जब आप बीजेपी में होंगे तो शायद आपका वो ऑफिस होता होगा। नहीं, अब वो उन्हीं का ऑफिस है, लेकिन कुछ ही दूरी पर है। आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी। एक लास्ट सवाल ये कि कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है ये पटेल नगर की सीट की फाइट, क्योंकि सबकी नजरें इस सीट पर टिकी रहेंगी, क्योंकि राजकुमार आनंद पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में। तभी तो मैंने कहा, मंत्री रहने के बाद पटेल नगर में कोई काम नहीं करा। आप सोचिए, कोई भी काम नहीं करा।
आज वो वोट लेने के लिए जा रहे हैं, उनको महिलाएं गाली दे रही हैं, उनको हर जगह से एक बड़े अजीब किस्म के उनको चीजें देखने को मिल रही है। क्या कारण है? कारण सिर्फ यही है कि 5 वर्षों में उन्होंने कोई काम नहीं किया। वालों की, दिल्ली चाट वालों की, and when it comes to chaat, when it comes to food, how can one miss the Rajasthan kachori with the tadka of hing? And the Delhi Dangal team has also reached over here at Rajasthan Kachori, which is said to be one of the oldest shop over here and which also has a tadka of hing in it. We'll speak to the shop owner as well. What is so special about this particular kachori, and the voters also as well, that what do they think about the Patel Nagar constituency? क्या बन रहा है भैया इस वक्त? मैडम कचौरी होती है। कचौरी होती है, कौन सी है ये मूंग दाल की होती है, आलू की सब्जी हींग के साथ होती है। अच्छा, तो आपकी जो कचौड़ी है, हमने देखा आपके बैनर भी लगा हुआ है सबसे पुरानी हींग वाली, तो क्या खास बात है इसमें ऐसी? मैडम बस रिफाइंड सही होता है और हाँ। सब्जी बढ़िया होती है। तो हींग का तड़का रहता है। हींग का तड़का रहता है। हाँ, कितनी पुरानी है दुकान? 10 साल हो गए मैडम। 10 साल हो गए। ये बताइए कि तड़का तो हींग का लग रहा है, लेकिन कौन सी पार्टी का तड़का लगेगा दिल्ली में, क्या लग रहा है? इस बार तो आम आदमी पार्टी लग रही मैडम। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि यहाँ के चारों पार्षद भी आम आदमी के हैं। हाँ। और आम आदमी सरकारी आम आदमी बननी चाहिए। अच्छा, तो आपको लग रहा है आप 10 साल से यहाँ पर कचौड़ी बेच रहे, काम वाम कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो हुआ मैडम। लेकिन राजकुमार आनंद थे, वो यहाँ पर उन्होंने कुछ काम किया या नहीं किया, जो बीजेपी में चले गए? ये तो पता नहीं मैडम। ये नहीं पता। चलिए, we'll also speak to few of the people, the janta of this particular Patel Nagar who has gathered over here and get a sense as to what do they have to think about the poll pulse, what they have to think about the issues. सर, आप कहाँ से हैं? मैं पटेल नगर पटेल नगर से। ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको, काम हुआ है आपके क्षेत्र में? काम हुआ है, बहुत हुआ है, और ये आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, बहुत अच्छा काम। लेकिन आपके जो विधायक थे, पूर्व विधायक राजकुमार आनंद, वो तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैडम, कोई भी रिश्तेदार कहीं भी जा सकता है, उसने गलत किया, किस मुंह से वोट मांगने आएंगे? क्या पता उस पार्टी को भी छोड़ के चले जाएं, काम जी से छोड़। रिश्तेदारी के साथ रिश्तेदारी बीजेपी में नहीं गई? किसकी? आपकी? हमारी नहीं गई। नहीं गई। नहीं। आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, क्या वजह है, आपको क्या लग रहा है? मैडम देखिए कि गरीब तबके के लिए बिजली, पानी, सड़क, क्या नहीं दिया उसने? सब कुछ दिया है। मुद्दे क्या क्या रहेंगे इस बार के चुनाव के, इश्यूज क्या क्या रहेंगे? विकास का मुद्दा रहेगा जी। विकास मुद्दा। तो बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में विकास नहीं हुआ है। तो विकास तो ये बीजेपी करा रही है, आम आदमी पार्टी तो कराया नहीं। ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी विकास नहीं करवा रही। अलग अलग राय सबकी हो सकती है, इनको नहीं लगा होगा, मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि पानी का बिल जाओ तो कौन से वो कहते हैं जब जीतेंगे तो पानी का बिल अब कम होगा, पानी के बिल माफ करेंगे, ऐसा ऐलान और किया। बिजली का बिल है जो वो 2100 रुपए जो कह रहे हैं लेडीज को देंगे, वो कैसे देंगे? अगर जीतेंगे नहीं तो किसको मिलेंगे? पंजाब में तो शायद मिले नहीं मेरे हिसाब से, हाँ। क्योंकि पंजाब बड़े इंटरव्यू आ रहे हैं लोगों के हाँ। कि पंजाब में तो किसी को मिला नहीं। हाँ। जीता हुआ मिनिस्टर, हाँ। एक सिटिंग जो मिनिस्टर था, वो अगर पार्टी छोड़कर चला गया, वो डर के मारे गया कि श्रद्धा से गया है, सब जनता जानती है। श्रद्धा से नहीं गया, डर के मारे गया है। डर के मारे गए, ऐसा आपको लग रहा है? एजेंसियों का डर दिखा गया, ऐसा लग रहा है? ऑब्वियसली। तो हींग की कचौड़ी आप ले जा रहे हैं इस बार सुबह सुबह? मैं सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को खिलाऊंगा कि खाइए और आगे बढ़िए और देश को आगे बढ़ाइए। इस राजनीतिक तड़का किसका लगने वाला है? केजरीवाल का। केजरीवाल आम आदमी का बिल्कुल बिल्कुल हमेशा जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल और जीतती आएगी। मैं बुला के नहीं लाया, बीजेपी बुला के नहीं लाया, इनको मैं बुला के नहीं लाया। बिल्कुल बीजेपी कुछ नहीं करती, जो झाड़ू ने करा है वो कोई बीजेपी नहीं कर सकती। कचौड़ी लेने आए हैं सर यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर क्या काम हुआ, आपको क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल लग रहा है? तड़का तो लग रहा है हींग का यहाँ पर मेरे पीछे, लेकिन राजनीति में किसका तड़का लग रहा है? राजनीति में तो ऐसे केजरीवाल का ही लग रहा है शायद। केजरीवाल का लग रहा है तड़का, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? लेकिन उन्होंने तो कुछ काम, वैसे बीजेपी कह रही कि किया नहीं है। काम तो किया है, लेकिन वो फ्री बिजली, फ्री पानी और आपको उसका लाभ मिल रहा है? नहीं, हमें तो नहीं मिल रहा है ना। हम नहीं चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? हमें कोई फ्री का नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए फ्री का, तो फिर आप किसे सपोर्ट करेंगे? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। आप बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? अभी तो आप केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब लग रहा है जिस हिसाब से जो। अच्छा, लग रहा है कि केजरीवाल जीतेंगे, लेकिन सपोर्ट आप बीजेपी को कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी वर्सेस केजरीवाल की लड़ाई में कौन जीतेगा? नहीं, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। अच्छा, जैसे आप महाराष्ट्र हरियाणा जीता, वहाँ यहाँ पे जादू चलेगा, क्या कारण लग रहा है आपको? कोई लग तो नहीं रहा है बस इस बार फिर केजरीवाल का ही जादू चलेगा, जिस हिसाब से फ्री की बिजली, फ्री आप फ्री का क्यों नहीं चाहते कि आपको फ्री की चीजें मिले? फ्री में जब विकास भी तो होना चाहिए, विकास तो हो नहीं रहा है।
और सब कुछ फ्री में होगा तो कैसे देश का विकास कैसे आपको अब कितना विकास चाहिए इतना तो होगा। एक युवा भी है, उनसे बात करते, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश है। हाँ जी, केजरीवाल के अलावा यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। मतलब केजरीवाल ने इतना विकास किया दिल्ली के अभी अंदर। वो बोल के गए भाई साहब की विकास नहीं हुआ। बहुत स्टूडेंट्स के लिए आप सरकारी स्कूल जाके चेक करो, स्टूडेंट्स के लिए बहुत विकास हुआ है। और आज कॉलेज में, स्कूल में? नहीं, मैं स्कूल ड्रॉप हो गया, मेरा 12th कंप्लीट हो गई है मेरी। बट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए केजरीवाल ने बहुत किया है और आगे भी करेंगे और आगे केजरीवाल ही आएंगे यहाँ पे। तो आपका कहना है यहाँ पे आम आदमी पार्टी जीतेगी? सो दैट वाज इन फैक्ट द पोल पल्स ऑफ द वोटर्स फ्रॉम Patel Nagar, particularly from the Rajasthan Kachori shop, where we got you so as to what the voters have to think, what's the fresh tadka of the political tadka, in fact I should say, along with the hing tadka that I'm just witnessing here at the Rajasthan Kachori. But yes, the important will be to note that what actually happens on 8th of February when the results will be out. देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। Anand claims that hollow promises were made by Kejriwal and therefore he decided to join the BJP. The team of Delhi Dangal today has reached Patel Nagar constituency and Rajkumar Anand from the BJP is the candidate over here. He has been a former minister in the Delhi government. He left up and came to the BJP. So welcome to Delhi Dangal. सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है? पिछली बार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे आप और इस बार आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं। जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। देखिए, इस बार एक तो भारतीय जनता पार्टी को हर आदमी समझ गया है कि अब इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है। रही बात पटेल नगर की, तो पटेल नगर के लोग, पिछली बार मैं दूसरी पार्टी में था, उसमें भी मेरे साथ थे और इस बार भी साथ देने का वायदा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जब आप थे तो आप व्यक्तिगत तौर पे हमारी मुसीबतों को मुसीबत समझते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते थे कि एमसीडी में हमारी सरकार आएगी तो जो सब समस्या है लोगों की, गाजीपुर का कूड़ा हो या एमसीडी की जो भी समस्या है वो सब खत्म होगी। वो आखिरकार क्यों नहीं हो पाया सर? क्यों दिल्ली में अभी भी गंदगी पड़ी रहती है? मैंने केजरीवाल को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में फर्क है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वो मैं जब आम आदमी पार्टी में विकास की बात करता था, पटेल नगर के सीवर सिस्टम की बात करता था, पानी की बात करता था और तमाम पार्किंग की बात करता था, अरविंद केजरीवाल कहता था कि प्रचार करो मध्य प्रदेश में जाके, प्रचार करो उत्तर प्रदेश में जाके, वहां हमें विधायक चाहिए, मुझे पटेल नगर में काम चाहिए, पटेल नगर मेरी दुनिया है। और ये सब लोग समझते हैं, इसलिए हम पटेल नगर के लिए संकल्प है हमारा कि हम अगली बार बनेंगे और फिर दोबारा से काम कराएंगे। Times Now Delhi Dangal today has reached the constituency of Patel Nagar and we are reporting from one cluster over here. You can see the BJP supporters are here. Let's talk to them and ask them what exactly is the situation on the ground. Ma'am, क्या माहौल है ग्राउंड पे? क्योंकि राजकुमार आनंद पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब बीजेपी में आए हैं। जो बीजेपी के नेता थे वो आम आदमी पार्टी में अब चले गए हैं। कैसा मुकाबला देखते हैं? क्या मुद्दे हैं? सर, राजकुमार जी ने पहले आम आदमी पार्टी में रह के इतने काम करे हैं, जो इतनी हल्की पार्टी जो आप देख रहे हैं आजकल, इतने काम करे हैं। शायद मेरे हिसाब से शायद केंद्र की सरकार में अगर आएंगे तो अच्छा और ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि उनकी उत्साहिता आज भी वही है जो आम आदमी पार्टी में रह के थी। क्या मुद्दे हैं सर पटेल नगर के और क्या चाहते हैं? क्योंकि विधायक वही हैं और क्या चाहते हैं कि पटेल नगर के लिए हो, क्या विजन है? पटेल नगर के लिए सबसे मूलभूत जो सुविधाएं यहाँ पे चाहिए, एक तो सीवर और पानी। और राजकुमार आनंद जी पार्टी अगर वो छोड़ दिया जाए तो खुद में एक ऐसी शख्सियत बन चुके हैं यहाँ पे। राजकुमार आनंद जी को लोग गलियों में, मोहल्लों में, झुग्गियों के अंदर लोग जानते हैं, जो उन्होंने पर्सनली उनका एक पर्सनली है। हाँ जी, जो है उन्होंने यहाँ पे पानी की व्यवस्था काफी अच्छी करी, सीवर की व्यवस्था अच्छी करी, जिसके कारण लोग, जनता क्षेत्र के यहाँ पे उनसे बहुत खुश है और पूरे समर्थन से, जोरों शोरों से यहाँ पे कार्यकर्ता ही नहीं, आम जनता भी उनके साथ जुड़ गई है इस कारवां में। पटेल नगर के और क्या कहेंगे? और बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। कैंडिडेट स्वैप हो गए हैं पिछली बार से, क्या लग रहा है माहौल? नहीं, मुकाबला है किससे हमारा? जो आम आदमी पार्टी के प्रवेश, वो तो है ही नहीं ना सर, वो तो है ही नहीं ना। वो फील्ड में अगर होते तो दिखाई देते ना। जो शख्स दिखाई देता है वही तो फील्ड में होता है ना। जैसे हमारे राजकुमार जी दिखा रहे हैं, कमल दिखाई दे रहा है। जो जैसे 10 साल 11 साल केजरीवाल ने बोला था, मैं इसी गलियों में आके उन्होंने बोला था
मैं स्वच्छ पानी दूंगा जल से, नल से। यही बात परवेश रतन जब बात करते हो कहते हैं कि राजकुमार आनंद ग्राउंड पे नहीं दिखते, वो बिजनेस पे उनका ज्यादा ध्यान है। क्या नहीं, अभी आप यहाँ पे घूम रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहा है? कोई झाड़ू का व्यक्ति कोई दिखाई दे रहा है? झाड़ू का व्यक्ति इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि 11 साल तक जो उनका जो कंजरीवाल है, वो उस कंजरीवाल ने हमेशा ही झूठ बोला है। अभी इसमें क्या आम आदमी पार्टी का होल्ड रहा है, एक जो ऐसे इलाके हैं 2100 रुपए फ्री बिजली फ्री पानी, क्या लगता है इस बार बीजेपी उस जिंक्स को तोड़ पाएगी? क्या क्लस्टर के वोट मिलेंगे? क्योंकि पटेल नगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ क्लस्टर बहुत ज्यादा है, शायद 110 के करीब क्लस्टर हैं। क्या है? मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं एक सोशल आदमी हूँ, मैं इसी एरिया का वासी हूँ, इसी एरिया में रहता हूँ। लेकिन जितना काम राजकुमार जी ने यहाँ पे किया है, बहुत अच्छा काम किया है। काफी पानी की काफी व्यवस्था करवाई है इन्होंने। कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो हर गरीब, चाहे बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो या कोई झाड़ू वाला हो, कोई भी गया उसके पास में, उन्होंने परवेश तो आज ये कह रहे हैं कि विधायक जी दिखते नहीं है, वो क्या जवाब देंगे? परवेश जी तो खुद 4 बॉडीगार्ड के साथ में घूमते हैं। ये विधायक जी बैठे हुए, मैं भाई साहब जितना काम राजकुमार बॉडीगार्ड ने क्या कह रहे हैं मैम? परवेश जी तो कहीं खुद ही नहीं दिखते। ये बताइए कि आपने 2100 के लिए रजिस्ट्रेशन कराया या नहीं कराया? हमने नहीं कराया जी। जब पहले 1000 वाले नहीं मिले, 1000 वाले नहीं मिले तो ये 2100 वाले क्या मिले? Times now brings you the reality check of what are the real issues of Patel Nagar. We are right now being joined by the residents of Patel Nagar Assembly constituency. Let's speak to them. What exactly are their issues? Sir, आपका नाम? अशोक कुमार। अशोक जी, ये बताइए कि यहाँ के इश्यूज क्या है? क्योंकि यहाँ के जो हम लोगों से जितनी बातचीत हुई, एक तो खराब सड़कें, पार्किंग की समस्या और एक जो क्लीनलीनेस सैनिटेशन की समस्या है, वो लोग बहुत बता रहे हैं। क्या ये सब कुछ ठीक है यहाँ पर। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। यही है, सीवेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है जी। कोई खोलने नहीं आता, सड़क पे निकलना मुश्किल हो गया। So that was our ground survey from Patel Nagar constituency. But one thing is for sure, that people of Patel Nagar, irrespective of their income group, will focus on civic issues, the issues that pertain to their daily life, while they will go out for voting on 5th of February. Well, absolutely, Mohit. For the voters of Patel Nagar, it's neither BJP nor Aam Aadmi Party. But the major concerns are their problems and the issues. But again, there is a unique mix of voices who believe that the centre should remain with the BJP and the national capital should again be with Aam Aadmi Party. Well, this was all in today's Delhi Dangal Ground Zero survey. See you tomorrow with new constituency, new candidates, and again, new candidate conversations.